پھر قزلباشیوں اور شیبانی خاندان کے سلطانوں کی تلواریں غجدوان میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ بابر نجم ثانی کے ساتھ گیا تھا، لیکن یہ واضح ہوتے ہی کہ فتح سلطانوں ہی کی ہوگی، اس نے اپنے دستوں کو اس خونی معرکے سے الگ کر لیا اور حصار لوٹ آیا۔ غجدوان کی اس لڑائی میں نجم ثانی مار ڈالا گیا، زیادہ تر قزلباش بھی مار ڈالے گئے، کچھ قید کر لیے گئے اور کچھ افراتفری کی حالت میں امو دریا کو پار کرتے ہوئے اس میں ڈوب گئے، اور اس طرح نامعلوم آفات سے متعلق اندیشے سچ نکلے۔ 1.5 سال قبل خانزادہ بیگم کے دل پر چھائے ہوئے خوف کے بادل جو بعد میں کچھ دنوں کے لیے چھٹ گئے تھے، شکست کے ان دشوار لمحات میں دوبارہ نمودار ہو گئے۔ بابر بائسون ہوتا ہوا حصار کے قاراتاغ علاقے میں پہنچا اور وہاں دامن کوہ سے ملحق ایک چھوٹی سی وادی میں اپنے 7,000 سپاہیوں اور شاہی خاندان کے افراد کے ساتھ رات گزارنے کے لیے پڑاؤ ڈال دیا۔ اس کے خیمے کے قریب ہی خانزادہ بیگم کا خیمہ بھی نصب کیا گیا، جس میں وہ اپنے بیٹے اور کنیز کے ساتھ سو گئی۔ نصف شب کے بعد وہ گھوڑوں کی ٹاپوں اور کتوں کے زور زور سے بھونکنے کی آوازوں سے چونک کر جاگ گئی۔ اس نے شدت خوف سے کانپتے ہوئے سنا کہ باہر لوگ غصے سے بھری ہوئی آوازوں سے چیخ رہے ہیں، مارو مارو، ان بدماش کفار کو قتل کر دو۔ خیمے کے اندر ایک چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ دشمن نے حملہ کر دیا، دشمن! خانزادہ بیگم، خرم اور کنیز آنن فانن کھڑے ہو گئے۔ خانزادہ بیگم نے جلدی جلدی جوتے پہنے اور بیٹے کی باہوں کو چوغے کی آستینوں میں ڈالنے لگی۔ اتنے میں کسی تیر کی تیز نوک خیمے کے موٹے نمدے کو چیر کر اندر آئی، لیکن پچھلے حصے میں لگے ہوئے پردوں کے باعث تیر نمدے میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ خوفزدہ ماں نے خرم کو سینے سے لگا لیا، لیکن خود خرم، جس کا قد خانزادہ بیگم کے شانوں سے اونچا ہو چکا تھا، اس تیر کی نوک کو بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھنے لگا جو اس کی جان لے سکتا تھا۔ ارے تفنگشی کہاں ہیں؟ خواجہ کلاں بیگ، قاسم بیگ، طاہر، حرم کی حفاظت کرو، بچوں کو سنبھالو، بندوقیں چلاؤ۔ بابر کے نجی محافظین کے پاس کچھ چمچاقی بندوقیں موجود تھیں جو اس زمانے میں غالباً سب سے بھیانک، نادر اور مہنگے اسلحے کی حیثیت رکھتی تھیں۔ یہ بندوقیں بابر نے قزلباشوں سے خریدی تھیں۔ اتنے میں کہیں قریب ہی ایک بندوق اور پھر ایک ساتھ کئی بندوقوں کی آوازیں سنائی دیں۔ خانزادہ بیگم کی ہمت اب اتنی بڑھ گئی کہ اس نے اطمینان کے ساتھ بیٹے کو کپڑے پہنائے اور چوغے پر وہ پیٹی باندھنا نہ بھولی جس میں شاندار خنجر لٹک رہا تھا۔ خیمے کے نمدے کی دیوار پر خرم شاہ کا تقریباً 10 تیروں والا ترکش بھی ٹنگا ہوا تھا۔ لڑکے نے ترکش کو شانے پر لٹکایا اور کمان ہاتھ میں لے لی۔ لڑائی کی آوازوں سے 11 سالہ لڑکا یقیناً سہم گیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر لڑنے کا جوش بھی جاگ اٹھا۔ اس پر بچپن ہی میں ماں باپ کے جنگ و جدل سے گہرا لگاؤ رکھنے والے مزاج کی چھاپ پڑ گئی تھی اور وہ جلد از جلد بڑا ہو کر شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بابر کی بخارا کی لڑائی کے دوران بھاگ کر اپنے ماموں کے لشکر میں شامل ہو جانے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن بابر نے فن حرب سے اس کی دلچسپی کی تعریف کر کے اسے اس کے استاد کے ساتھ واپس بھیج دیا تھا۔ خرم اپنی ماں کی اس قدر شدید محبت سے بھی متاثر ہوا تھا جو وہ بہن کی حیثیت سے بابر سے کرتی تھی۔ وہ اپنے اساتذہ سے جو بابر سے دلی عقیدت رکھتے تھے بار بار اس کی جرأت و شجاعت کے تذکرے بھی سن چکا تھا۔ اس طرح شیبانی خان کے بیٹے کے دل میں اپنے ماموں کے سلسلے میں محبت اور اس کے دشمنوں یعنی شیبانی خاندان کے سلطانوں کے خلاف نفرت کے جذبات روز بروز بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ ان لوگوں سے نفرت کرتا تھا جنہوں نے ابھی ابھی مارو کے نعرے کے ساتھ پڑاؤ پر حملہ کر دیا تھا اور چاہتا تھا کہ اپنے شاہی ترکش کے سارے تیر ان لوگوں پر برسا دے۔ وہ باہر جانے کے لیے لپکا اور خیمے کے دروازے کے پردے کو جھٹکے سے ایک طرف ہٹا دیا۔ بوڑھی کنیز چلائی، ارے شہزادے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ٹھہر جائیں۔ اس نے خرم کو خیمے میں واپس کھینچنے کے لیے اس کی پیٹی پکڑ لی، لیکن دلیر لڑکے کو روکنے میں ناکام رہی۔ چھوڑ دیجئے، مجھے جانے دیجئے، میں اپنے ماموں جان کی مدد کرنا چاہتا ہوں، جانے دیجئے۔ بابر کے محافظ دستے نے بندوقوں کی گولیاں اور تیروں کی بوچھاڑ سے دشمنوں کو عورتوں اور بچوں کے خیموں کے قریب نہ آنے دیا۔ طاہر 2 گھوڑے لے کر خانزادہ بیگم کے خیمے کے سامنے آیا اور سخت لہجے میں بولا، عالی نصب بیگم صاحبہ فوراً سوار ہو جائیے۔ خانزادہ بیگم نے صندوقوں اور گٹھڑیوں پر نظر دوڑائی، اور سارا سامان چھوڑ دیں کیا؟ جان سلامت تو سامان پھر مل جائے گا، فوراً سوار ہو جائیے، عالی جان نے یہی حکم دیا ہے۔ آسمان پر ماہ کامل چمک رہا تھا۔ اس کی روشنی میں ماہم بیگم 5 سالہ ہمایوں کو گود میں لیے ہوئے سفید خیمے سے باہر نکلی۔ گھوڑے پر سوار قاسم بیگ نے جھک کر ہمایوں کو تھاما اور اپنے آگے بٹھا کر اپنے چوغے سے ڈھک لیا۔ خانزادہ بیگم گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ خرم سب سے پہلے ہی اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا، تو طاہر نے اپنی بیوی اور 10 سالہ بیٹے سفیر کو گھوڑے پر سوار کرایا۔ عورتوں اور بچوں کو قاسم بیگ کے زیر کمان سپاہیوں نے حفاظتی گھیرے میں لے لیا اور یہ لوگ پہاڑ سے اس واحد سمت میں بڑھے جدھر ابھی تک لڑائی نہیں ہو رہی تھی۔
बाकी तीनों समतों से गोलियों की ठाएं ठाएं, तलवारों की झनकारों, जख्मियों की कराहों और घोड़ों की फुंकार और हिनहिनाहट के दरमियान गुस्से से भरी हुई आवाजें उबर रही थीं। निकम्मा बाबर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मार डालो, नीस्तो नाबूद कर दो कमबख्तों को। खानजादा बेगम ने जो कुछ समझ नहीं पा रही थी कासिम बेग से पूछा, ये कौन दुश्मन है जो ऐसे बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं? बागी, वजीर ने झल्लाहट से कहा, इस बार भी वही मुगल ही हैं। 2 साल कबल भागकर कंदज में हमसे आन मिले थे, फिर लौट गए थे। ये लोग तो लगता था कि हमारे साथ ही रहेंगे, लेकिन अब इनका इरादा है कि हमारे हुक्मरान पर अचानक हमला करके सोते में ही जान ले लें। खुदा का शुक्र है कि ताहिर बेग के पहरेदारों को खतरे का बरवक्त इल्म हो गया। उफ, मुसीबत पर मुसीबत। सबसे बुरी बात यह है कि बागी तादाद में हमसे दुगने हैं और उन्होंने हमले की तैयारी पहले से कर ली थी। आप बीच में रहिए खानुम, अगली सब सिपाहियों के लिए है। बागी पड़ाव का मुहासरा मुकम्मल करने को ही थे कि इतने में कहीं करीब से बाबर की आवाज सुनाई दी, उस्ताद अली, बंदूकचियों को आगे ले जाइए, हम मुहासरे को तोड़ेंगे। गोलियां बाआसानी ज़रहों और खुदों के पार हो जाती थीं और बंदूकचियों के सामने बागी टिक नहीं पा रहे थे। बाबर अपने तमाम मोतबर और उम्दा सिपाहियों को यकजा करना और उनके साथ मुहासरे को तोड़कर हिसार के किले तक पहुंच जाना चाहता था। साजिशी उसे किले की समत नहीं जाने देना चाहते थे, क्योंकि वो खुद ही किले पर काबिज होने के ख्वाहां थे और इसीलिए बगावत भी की थी। चकमाकी बंदूकें जिनकी नालियां 3-4 गोलियां चलाने के बाद बहुत गर्म हो जाती थीं, अब लड़ाई के काम न रह गईं। ख्वाजा कलाम बेग के जेर कमान 1000 सिपाही मुहासरे को तोड़कर निकले, लेकिन जुनूब की समत नहीं, जिधर औरतें और बच्चे मौजूद थे, बल्कि मशरिक की समत तेजी से बढ़ने लगे। घुड़सवारों की दस्त बदस्त लड़ाई में बला की तेजी और तुंदी आ गई। खुरम अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। उसके दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि जिन लोगों ने उसके मामू और वालिदा पर धोखे से हमला किया है, उनमें से कम एक ही को अपने तीर से मार गिराए। लड़ाई ने अलग अलग बिखरे हुए गिरोहों के तसादुमों की शक्ल इख्तियार कर ली और एक तसादुम उन सिपाहियों के करीब ही होने लगा जो औरतों और बच्चों की हिफाजत कर रहे थे। खुरम ने अचानक बड़े अज़्म के साथ अपने घोड़े को एड़ लगाई और सिपाहियों की अगली सफ में पहुंचकर अपनी कमान से यके बाद दीगरे 3 तीर चला दिए। खानजादा बेगम की निगाहों से वो बस पल भर के लिए ओझल हुआ था। उसने बेटे को तीर चलाते देखा तो फौरन ही अपना घोड़ा उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन करीब पहुंची ही थी कि इतने में दुश्मन का एक तीर आकर खुरम के दाएं पहलू में धंस गया। कमान उसके हाथों से गिर गई और वो खुद भी जीन से नीचे लुढ़कने लगा। मेरा कलेजा! मां की चीख से लड़ाई का शोर दब सा गया। ताहिर ने फौरन ही खुर्रम को उसके घोड़े पर से खींचकर अपने आगे बिठा लिया, लेकिन इसी असना में वो बेहोश हो चुका था। आखिरकार पौ फटने लगी। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। बाबर मुहासरा तोड़कर किला हिसार को जाने वाले रास्ते की तरफ निकल जाने में नाकामी के बाद वादी वहश में लौट आया था। बागी अब इस हालत में नहीं रह गए थे कि उनका ताक़ुब करते। शाही तबीब साफ सुथरे चौगे में लेटे हुए खुर्रम को होश में लाने की कोशिश करने लगा। उसने जख्म पर मरहम लगाया, खून बहने का सिलसिला रोक देने में भी कामयाब हो गया, लेकिन खुर्रम किसी तरह होश में ना आ सका। थोड़ी थोड़ी देर बाद कराहता रहा और बस फेफड़े और मैदे के दरमियान दाखिल होने वाले तीर से अंदरूनी आज़ा बुरी तरह मुतासिर हो गए थे। तबीब ने पानी के जरिए बेहतरीन किस्म की मोमियाई खिलाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा, क्योंकि बेहोश लेटे हुए लड़के के हलक में उंडेले जाने वाला पानी और उसके साथ ही दवा भी बाहर निकल आती थी। खानजादा बेगम ये देखकर बदहवास हो गई, बेटे पर झुकी और उसके बेहिस जिस्म से लिपट कर रोने लगी। खुर्रम जान, हाय मेरे इकलौते बेटे, मेरे लख्ते जिगर। अचानक लड़के की आंखें पूरी तरह खुल गईं, लेकिन वो कुछ देख नहीं रही थीं। पुतलियां इधर उधर घूमी और पथरा गईं, पलकें बेहिस हरकत हो गईं। बाबर समझ गया कि खुर्रम दम तोड़ चुका है। उसने बहन की शानों को पकड़कर उसे अलग ले जाने की कोशिश की, लेकिन खानजादा बेगम ने खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करा लिया। वो बेटे की मैयत से लिपट गई, उसे प्यार करने और कुछ ऊपर उठाकर रुंधे हुए गले से पुकारने लगी। खुर्रम, कहाँ चले गए तुम? खुर्रम जान, कहाँ हो तुम मेरे जिगर गोशे? उठो उठो बेटे, बोलो ना, कुछ कहो ना। आखिरकार बाबर ने, जो खुद भी अश्कबार था, मैयत को किसी तरह मां की गिरफ्त से छुड़ाया और दोबारा चौगे पर लिटा दिया। कासिम बेग ने आंखें बंद करने के लिए अपनी उंगलियां धीरे धीरे भवों से नीचे फेरी, लेकिन लड़के की आंखें नीमवा ही रह गईं। अब कहीं जाकर खानजादा बेगम को यकीन हुआ कि बेटा दुनिया से कूच कर गया है। वो हैजानी कैफियत में सर पीट पीट कर बड़े दर्दनाक अंदाज से बयान करने लगी। कहने लगी कि इससे तो कहीं अच्छा था कि मुझे मौत आ जाती। मैं आखिर तुम्हें यहाँ लाई ही क्यों थी?
बाबर ने बहन की भिजी हुई मुट्ठियों को थामकर उसका मुंह जबरदस्ती अपनी तरफ फेरा। इस सानेहे के लिए किसी को कोसना जरूरी हो तो मुझे कोसिए, उसने तलखी के साथ कहा। आप पर मुसीबत का ये नया पहाड़ मेरी ही वजह से टूटा है। मौत अगर मुनसिफ होती तो पहले मेरी जान लेती, क्योंकि हर बात के लिए सबसे ज्यादा कसूरवार मैं हूं। मेरी ही वजह से तो यह मासूम लड़का 2 तलवारों की चपट में आ गया। मैंने ही तो आप सबको फंसाया है इस जंग में। कासिम बेग ने इजहार हमदर्दी के तौर पर बाबर के शानों पर हाथ रखकर उसे चिमटा लिया। वो दिल ही दिल में अपने ऊपर लानत भेज रहा था कि गुज़श्ता साल कंदज में मुगल बेगों के साजिश का इल्म हुआ होता तो उसने बाबर को सख्त कार्रवाई करने से रोक दिया था। आज की ये बगावत वही पुराना फोड़ा था जो फूट गया था। कसूरवार तो हम सभी हैं आलीजा, आखिरकार कासिम बेग ने कहा। दुनिया का तो हमेशा यही हाल है। गद्दार लोग ईमानदार और बेकसूर अफराद को यूं ही बर्बाद करते रहे हैं। इतने में खानजादा बेगम दोबारा चीख मारकर खुर्रम की मैयत की तरफ झपटी। मैं आजिज आ चुकी हूँ आपकी इस दुनिया से, बहुत हो चुका। मुझे भी मेरे बेटे के साथ दफन कर दीजिए। मैं दूसरी दुनिया में चली जाऊंगी, खुर्रम के साथ चली जाऊंगी। उन लोगों ने सनूबर के तने और शाखों से एक पलंगड़ी बनाकर मैयत को उस पर रख दिया और उस पलंगड़ी को उठाए हुए बारी बारी कंधा देते हुए दिन भर चलते रहे। शाम को उसे एक सरसब्ज़ व शादाब टीले पर, जहां से अजीमुशान कोहे पामीर दिखाई देता था, दफन कर दिया गया। छोटी सी कब्र पर एक सफेद झंडी लहराने लगी, जो इस बात की अलामत थी कि वहां एक मासूम रूह अबदी नींद सो रही है। खानजादा बेगम को, जो जिंदा दरगोर हो रही थी, किसी तरह कंदज ले जाया गया, फिर वहां से काबुल। शाम से जरा कबल झील से लंबी चौंच वाली मुर्गाबियों के एक गाल ने ऊपर की तरफ परवाज की। मिर्जा हुमायूं उस लम्हे के इंतजार में काफी देर से झाड़ियों में छुपा बैठा हुआ था। उसने कमान की तांत खींचकर एक और फिर फौरन दूसरा तीर चलाया। गाल की एक मुर्गाबी की रफ्तार धीमी पड़ गई और वो बाजू लटकाए हुए तेजी के साथ नीचे आकर मुखालिफ समत वाले किनारे के करीब पानी में गिर गई। वहीं 8 चप्पुओं वाली शाही कश्ती, जिस पर साइबान पड़ा हुआ था, हल्की हल्की लहरों पर डोल रही थी। हुमायूं घोड़े पर सवार होकर अपने अतालिक और सिपाहियों के साथ झील के किनारे किनारे चलता हुआ दूसरी जानिब पहुंचा, लेकिन इससे कबल ही बादशाह के कुछ दरबारी कश्ती पर सवार होकर मुर्गाबी को पानी से निकाल लाए थे और अब वली अहद की तरफ चले आ रहे थे। हुमायूं ने देखा कि मुर्गाबी को, जिसे किसी दरबारी ने ज़िबा किया था, खुद बाबर हाथ में लिए गौर से जायजा ले रहा है। वो जल्दी से घोड़े पर से उतरा और शाही आदाब के बमूजिब दूर ही से अपने वालिद को कोरनिश बजा लाया। बाबर ने एक ही झटके से परिंदे के सीने में चुभे हुए तीर को निकाल लिया और बेटे की तरफ देखते हुए पूछा, ये आपका तीर है? हुमायूं फौरन समझ गया कि वालिद पर उस वक्त भी हल्का हल्का सुरूर तारी है। गुज़श्ता कुछ दिनों से बाबर खासा बलानोश हो गया था और आज भी दरबारियों के साथ कश्ती पर मय नाब पी थी। हुमायूं को याद आ गया कि झील और उसके इर्द गिर्द का इलाका बादशाह के आराम करने के लिए वक्फ है। उसने नदामत के साथ आंखें झपकाते हुए जवाब दिया, माफ फरमाइए जहांपना, मैं यहाँ शिकार खेलने आ गया था बेवक्त, लेकिन निशाना खूब लगाया। बाबर ने मुस्कुराते हुए कहा, लीजिए अपने परिंदे को, शाबाश। हुमायूं बाएं हाथ को सीने पर रखकर वालिद के पास गया और दाएं हाथ से मुर्गाबी लेकर फौरन एक खादिम को थमा दी। बाबर के मुसाहिबीन में शामिल बड़ी बड़ी आंखों वाला एक दुबला पतला सांवला नौजवान, जो हिंदू बेग कहलाता था, उसकी तरफ इस तरह मुस्कुराया कि उसके उजले उजले दांत दिखाई देने लगे। वली अहद लाजवाब निशानेबाजी और हाथ की मजबूती के मामले में बिल्कुल बादशाह जी जहाँ पर ही पड़े हैं। ख्वाजा कना बेग ने फौरन ही कदरे बेरब्ती के साथ, जो मैनाब का नतीजा थी, तायद की कि शहजादा अपने मशहूर व मारूफ वालिद के शाया निशान है। बाबर ने मुतमईन होकर कासिम बेग की तरफ देखा, जो हमेशा ही एक तरह उस वक्त भी बाबर की तरफ से बहुत ज्यादा मुतवज्जे चुपचाप एक तरफ खड़ा हुआ था। उसकी उम्र 60 से तजावुज कर चुकी थी। वजीर आजम के ओहदे से खुद अपनी मर्जी से अलहदगी इख्तियार कर ली थी और अब हुमायूं के अतालीक के फराइज अंजाम दे रहा था। बाबर ने सोचा, कासिम बेग किसी जमाने में मेरे अतालीक भी थे। उनका जैसा वफादार शख्स ना होता तो मुझे जाने कितनी मुश्किलात झेलना पड़ती। हुमायूं की इस कमाल की तीरंदाजी के लिए उनके मोहतरम अतालीक लायक सताइश है। बाबर ने कहा, लेकिन वली अहद के लिए निशानेबाजी की महारत ही काफी नहीं होती। मेरे वली अहद को घुड़सवारी के फन पर कितना उबूर हासिल है। कासिम बेग ने हुमायूं को हौसला अफजा निगाहों से देखा और लड़के ने इस सवाल का जवाब अमली तौर पर देने की आंखों ही आंखों में इजाजत मांगी। अच्छी बात है, दिखा दीजिए। 13 साल हुमायूं कद में तकरीबन अपने वालिद के बराबर हो चुका था और सूरत शक्ल और वज़ाक़ता से बाबर के लड़कपन की जीती जागती तस्वीर लग रहा था। कासिम बेग के इशारे पर 2 सिपाही 2 घोड़ों को, जिन पर काठियां कसी हुई थीं, पकड़कर एक सीध में एक दूसरे से कोई 50 कदमों के फासले पर खड़े हो गए। हुमायूं बड़ी फुर्ती से उछलकर घनी अयाल और माथे पर सफेद निशान वाले घोड़े पर सवार हुआ
उसे कुछ दूर तक पछाड़ ले गया, फिर एड़ लगाकर दौड़ाता हुआ पहले घोड़े के बराबर पहुंचा, अपनी लगाम छोड़ी, रकाबों से पांव निकाले, दूसरे घोड़ों की काठी थामी और पलक झपकते में अपने घोड़े की काठी पर से उछलकर उस पर सवार हो गया। उस घोड़े की लगाम फौरन ही थामकर उसे सर पड़ दौड़ाते हुए उसने अगले घोड़े को पकड़े खड़े हुए सिपाही को आवाज दी, अपनी जगह से ना हटना, और इतनी ही फुर्ती से उछलकर तीसरी काठी पर भी सवार हो गया। बेग, जिन्हें नशे ने खासा बेबाक बना दिया था, तकरीबन एक साथ चीख उठे, आफरीन सद आफरीन, न कभी सुना न देखा, बेनजीर, बिल्कुल जहांपना की तरह। बाबर को याद आ गया कि लड़कपन में जबकि वो बहुत दलेर था, घुड़सवारी की ऐसी ही मशक़ें खुद भी किया करता था। अंदजान के बाहर वाक़े बाग में यूं ही एक घोड़े की काठी से उछलकर दूसरे की काठी पर सवार हो जाता था। उसे ये भी याद आ गया कि एक बार वो चूक गया था और पैर में सख्त चोट आ गई थी। चश्मे बद्दूर, घुड़सवारी से मुताल्लिक फुर्ती के मामले में तो लगता है मिर्जा हुमायूं मुझसे भी आगे बढ़ गए हैं। मिर्जा हुमायूं तो हर मामले में आपको नमूना तकलीद तसव्वुर करते हैं आलिजा, कासिम बेग ने सिद्क़े दिल से कहा। इसका जवाब बाबर ने भी सिद्क़े दिल से ही दिया। हर मामले में तो मैं शायद इनके लिए तकलीद का नमूना बन सकूं। इतने में हुमायूं दोबारा उन लोगों के करीब आ गया। उसे वालिद के मगमूम व मलूल चेहरे को देखकर हैरत हुई और उसने कहा, क्यों नहीं आलम पना, मेरे मोहतरम मतालिक, मुझे आपकी उन जंगों के बारे में भी जिनमें किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया सब कुछ बता चुके हैं। दुश्मनों का मुकाबला आपने जिस शुजाअत से किया उससे तो शायद रुस्तम, सोहराब और अल्पामिश ने भी ना किया हो। अरे शहजादे, जंगें ज्यादा अहमियत नहीं रखती, देखिए ना जंगों से कैसे कैसे नताइज रूनुमा होते हैं। बाबर ने कहा, उसका इशारा अपनी शिकस्तों और उनके नताइज की तरफ खास तौर से अपने मावर नहर से हमेशा हमेशा के लिए हाथ धो बैठने के संगीन तरीन नतीजे की तरफ था। लेकिन हुमायूं के नजदीक खास बात कुछ और ही थी। उसके वालिद ने खूनी मारकों में जाने कितनी ही बार मौत से टक्कर ली थी और हर बार इस मुकाबले से जिंदा और सलामत निकल आया था। क्या ये हकीकी शुजाअत का मुजाहिरा न था? हुमायूं हाल ही में कासिम बेग से सुन चुका था कि बाबर ने हरात और काबुल के दरमियान बुलंदियों पर वाक़े दर्रे को कैसे पार किया था। सर्दियों के अय्याम थे, लहू को मुंजमिद कर देने वाली सर्दी पड़ रही थी और निहायत ही भयानक बर्फानी तूफान भी आया हुआ था। ऐसे में उस दर्रे को, जहां मौसम गर्मा तक में बर्फ की मोटी मोटी तहें जमी रहती थीं, पार करने का कोई दूसरा शख्स तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। लेकिन बाबर ने इसे अपने सिपाहियों के साथ पार किया और तमाम मुश्किलात पर काबू पा लिया। ऐसे बहादुराना इक़दाम का तसव्वुर वही शख्स कर सकता था जो खुद को कुर्बान कर देने का अज़्म रखता हो, इस बात की खाक भी परवाह न करता हो कि वो बर्फ के गिरते हुए तोदों में दफन हो सकता है। अतालिक ने हुमायूं को बताया था, हम लोग सीने सीने तक बर्फ में धंस जाते थे, घोड़ों के लिए कदम उठाना सख्त दुश्वार हो गया था, बर्फ पर गिर गिर पड़ते थे, फिर भी लोग बारी बारी आगे निकलकर बर्फ को उठा उठाकर दोनों जानिब फेंकते और रास्ता बनाते जाते थे। आखिर सिपाहियों के लिए भी थकन और कोहिस्तानी बुलंदियों पर हवा की कमी के नतीजे में हो जाने वाली बीमारी के बायस चलना तकरीबन नामुमकिन हो गया। तब हमारे हुक्मरां आगे बढ़े। सर्दी में बराबर इजाफा ही होता जा रहा था। हुक्मरां का चेहरा और कान अकड़कर सूज गए, लेकिन उन्हें इसका एहसास तक न हुआ। वो हम सबको लिए हुए आगे बढ़ते ही रहे और आखिरकार हमने मौसम सरमा में इंतहाई पुरखतर बन जाने वाले इस दर्रे को पार कर लिया। कासिम बेग ने उन आफतों के जो बाबर के सर पर मुसलसल नाजिल होती रही थीं किस्से सुना सुना कर हुमायूं को यकीन दिला दिया था कि उसके वालिद के आगे मौत भी बेबस हो जाती है। हुमायूं इस खुश एतकादाना यकीन के साथ इसी के साए में परवान चढ़ रहा था और उस वक्त उसने बच्चों जैसी बाएतमादी और सादगी के साथ बाबर से पूछा, आलीजा, क्या ये सच है कि यहीं काबुल में जब साजिश करने वालों से लड़ाई हो रही थी तो दोस्त नाम के पहलवान जैसे किसी सिपाही ने आपको पहचान नहीं सका था और आप पर तलवार चला दी थी? बाबर मुस्कुराने लगा। हाँ शहजादे, ये सच है। क़यामत की सर्दी में दर्रे को पार करते वक्त मेरा चेहरा अकड़ के सूज गया था और जाहिर है जब यहाँ पहुंचा तो सूरत खासी बिगड़ी हुई थी। लेकिन काबुल में गद्दारों ने हमारा इस्तकबाल तलवारों से किया। उन्होंने जिन सिपाहियों को फरेब दिया था उनमें दोस्त भी शामिल था। ये सिपाही मुझसे बखूबी वाकिफ था। मैंने ऐन वक्त पर उसे ललकारा, दोस्त जरा होश में आओ। लेकिन उठी हुई तलवार को रोक लेना बहुत मुश्किल होता है, तो उसकी तलवार मेरे खोद पर आन पड़ी। मैं समझता हूँ कि दोस्त ने मेरी आवाज सुनते ही मुझे पहचान लिया था और उसका हाथ लरज उठा था, इसीलिए वार ज्यादा जोरदार ना हो सका। वैसे तो उसकी तलवार की जरब हमेशा ही जानलेवा साबित होती थी, लेकिन मेरे सिर्फ सर और गुद्दी में जख्म आए और बस। और उस सिपाही का क्या हश्र हुआ था? वो मारे डर के तलवार फेंक कर भाग खड़ा हुआ था। मैंने ताक़ुब नहीं किया था। ये सुनकर हुमायूं और सब बेग बेहद मसरूर हुए। इनकिसारी इंसान की शान बढ़ाती है,
لیکن بابر کے موجودہ وزیر اعظم محمد دولدائی نے جو 40 سال کا بہت ہی وجیح اور شکیل بیگ تھا، قدرے لڑکھڑاتے ہوئے ایک ایسی بات کہنے کا فیصلہ کیا جو اس کے خیال میں سچ تھی۔